الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان برادر اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کنڈے کی نیاز ہے وہ کرواتے ہیں ہم سب، اور رجب المرجب کی 12 سے 22 تاریخ تک لوگ کراتے ہیں کنڈے کی نیاز، لیکن یہ فاتحہ میں سب کراتے ہیں۔ آج ہم حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ سیرت مبارکہ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ رکھنے سے پہلے جو فاتحہ خوانی میں کچھ عوام کی غلط فہمیاں ہیں وہ دور کر دینا ضروری ہے۔ حضرات، آج کل بہت سی ایسی بے فضول کی چیزیں چل رہی ہیں جس سے عوام کا واقف ہونا ضروری ہے، یعنی اس کا دین سے تو کچھ لینا دینا نہیں، لیکن سب اس کو یوں جوڑتے ہیں کہ جیسے وہ دین کا حصہ ہو۔ ابھی جیسا کہ سب لوگ بولتے ہیں کہ فاتحہ خوانی میں جو فاتحہ کرتے ہیں اور جو عورتیں ہوتی ہیں، اگر میں کھلا بات کروں تو جن عورتوں کو حیض رہتا ہے، یعنی ناپاکی میں عورت فاتحہ کا کھانا ہو یا بنانے والی چیز ہو اسے چھو نہیں سکتی۔ یہ جو بات ہے یہ سراسر ایک غلط فہمی ہے، ایسا کچھ دین میں نہیں ملتا ہے۔ عورت اگر ناپاک بھی ہے تو فاتحہ کا چیز بنا بھی سکتی ہے، کھا بھی سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے عوام کی کہ نہ اسے اس کو چھونے دیا جاتا ہے، کہتے کہ تو ناپاک ہے تو نہ تو چھو سکتی ہے نہ بنا سکتی ہے، تو یہ سب بے فضول باتیں ہیں، اس سے گریز کرے تو ہی بہتر ہے۔ اس کی مثال پر میں ایک حدیث کریمہ سناؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں کہ میرے سر میں تھوڑا سا پانی ڈالو۔ اس وقت ام المومنین حیض سے ہوتی ہیں تو کہتی ہیں یا رسول اللہ میں ابھی ناپاکی میں ہوں، حیض سے ہوں۔ تو حضور فرماتے کہ عائشہ حیض تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں، لہذا تم اپنے ہاتھوں سے میرے سر میں پانی لگا سکتی ہے۔ تو گویا کہ جب حضور کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں چھو سکتی ہیں تو حضور سے پاک ذات اور کیا ہے بعد خدا۔ تو یہ فاتحہ خوانی نہ چھو سکتے ہیں، یہ سب وغیرہ یہ سب فضول باتیں ہیں، اس سے گریز کرے۔ اور اسی طرح کا ایک اور حدیث ہمیں ملتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے اور ام المومنین حیض سے ہوتی تو آپ ساتھ میں ہی بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو ام المومنین جہاں سے گوشت کا ٹکڑا توڑتی، حضور بھی انہی کا اٹھا کے وہیں سے گوشت کا ٹکڑا توڑتے جہاں سے عائشہ صدیقہ نے کھایا ہوتا، اور اگر پانی عائشہ صدیقہ پیتی تو حضور بھی وہیں پہ لب لگاتے جہاں پر ام المومنین کا لب لگا ہوا ہوتا۔ تو اس پر عائشہ صدیقہ فرماتے کہ حضور میں ناپاکی سے ہوں، یعنی میں حیض سے ہوں۔ تو حضور فرماتے کہ عائشہ حیض تمہارے منہ میں نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں جو لوگ عوام میں پھیلا کے رکھیں کہ ناپاک عورت چھو نہیں سکتی، بنا نہیں سکتی، یہ سب خالی باتیں ہیں، اس سے گریز کرے تو ہی بہتر ہے۔ اور بہت سے لوگوں کے دل میں یہ رہتا ہے کہ اگر عورت کو حیض ہو تو آدمی بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو عورت سے الگ ہونے لگتے ہیں، مطلب کہ بھائی تو جب تک حیض سے ہے نہ تو میرے پاس سو سکتی نہ رہ سکتی ہے، یہ وغیرہ تو یہ سب دین اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اگر عورت حیض سے بھی ہے تو آدمی اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے،
सिर्फ हैज़ में हम बिस्तरी हराम है, बाकी जैसा रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है वैसा वो गुजार सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और तीसरा ये कि लोग फातिहा के दौरान इतना फास्ट चलते हैं कि भाई मगरिब से पहले अगर नहीं हुआ तो जैसे हज़रत जाफ़र सादिक डंडा लेके खड़े कि भाई तेरा एक गुंजा अभी बचा हुआ है, अगर मगरिब से पहले नहीं हुआ तो इसको दफन करना पड़ेगा। तो ये सब फालतू बातें हैं, इससे गुरेज करें। अगर मगरिब से पहले पहले हो गया तो भी ठीक है, मगरिब तक भी हो गया ठीक है, मगरिब के बाद भी आप करा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि फातिहा ये मुस्तहब अमल है, ये ना फ़र्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत, ये एक मुस्तहब अमल है, इसे आप जब चाहे तब कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अवाम में ये भी बातें बड़ी मशहूर हैं कि हज़रत जाफ़र सादिक बहुत जलाली आदमी थे, जबकि ये सब एकदम गलत फहमी, ऐसा कुछ नहीं है। उनका एक वाक़या मैं सुनाऊंगा जिससे आप उनकी रहम दिली का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब हज़रत जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अपने एक दिन क्या होता है कि अपने घर में होते हैं और अपने घर के ख़वातीन से फरमाते हैं कि आप तुम लोग छतों पे ना जाया करो, क्योंकि अगर तुम छत पे जाती हो तो खुला सर होता है, बेपर्दगी होती, तो ये बेहतर नहीं है, लिहाजा घरों के अंदर रहा करो। एक वक्त आया कि हज़रत जाफ़र सादिक किसी काम की वजह से बाहर चले गए। आपकी अहलिया यानी आपकी बीवी, आपका एक छोटा बच्चा था गालिबन 4 या 5 माह का, वो घर में बड़ा जब रोने लगा तो आपकी बीवी ने उसे लिया कि चलो छत पे चलती हूँ, इस बहाने बच्चे को थोड़ा सा राहत मिलेगा। और जब बच्चे को लेके वो छत पे गई तो वाकई बच्चा भी चुप हो गया और सो गया। अब जब बच्चा सो गया तो वो वापस वो पलट के छत से जैसे नीचे आ रही थी, ऐन वो सीढ़ी पे थे कि हज़रत जाफ़र सादिक भी तशरीफ़ ले आए। अब आपकी अहलिया ने जब जाफ़र सादिक को देखा तो वो लरस के रह गई कि इन्होंने तो मुझे मना किया था, अब पक्का मुझे सजा देंगे। और इस खौफ में वो इतना डरी कि उनके हाथ से वो बच्चा छूटा और छूट के सीढ़ी पे गिरा और फौरन वो बच्चा भी इंतकाल कर गया आपका। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 4-5 माह का बच्चा अगर सीढ़ी पे गिरेगा तो जाहिर सी बात है बचना तो मुश्किल है। तब वो और घबरा गई कि एक गलती तो मुझसे ये हो गई कि मैं इनके हुक्म के बगैर छत पे गई, और दूसरी गलती ये कि आज मुझसे बच्चा भी गिर गया और फौत हो गया। हज़रत जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने उन्हें देखा, कुछ नहीं कहा, बस इतना लफ्ज़ अदा किए कि जा तू आज से आज़ाद है। उसका इतना सुनना था कि कदमों में गिर गई, कहने लगी हुजूर क्यों मुझे आप आज़ाद कर रहे हैं, मुझे गलती मुझे माफ़ कर दें। तो कहने लगे नहीं, तू आज से आज़ाद है, तू जा सकती है। जब लोगों ने दरियाफ्त किया कि हुजूर आपने उसे आज़ाद क्यों कर दिया, तो हज़रत जाफ़र सादिक ने कहा ना मैंने उसको सज़ा देने के लिए आज़ाद किया, न मेरा और कोई ऐसा इरादा था, बल्कि मेरे को ये खौफ आया कि कल बरोज़े क़यामत जब महशर के वक्त अल्लाह मुझसे ये पूछेगा कि जाफ़र तूने इतने घूर के क्यों उसको देखा कि वो लरस गई और उस वजह से बच्चा छूट के गिरा। बस मैं इस खौफ में उसको आज़ाद कर दिया ताकि मेरे इस गलती का कफ़ारा अदा हो जाए, यानी उसको सज़ा देना मेरा कोई मकसद नहीं था। तो 2-3 बातें जो मैंने कही, पहला तो फातिहा में जो लोग ये सब गलत फहमियाँ करते हो ना करे, वो बेहतर होगा। हाँ, औरत अगर नापाक है वो बना भी सकती है, खा भी सकती, सब कर सकती, बस इतना नहीं कर सकती नापाकी में कि वो खुद कुरान पढ़कर फातिहा नहीं दे सकती। अगर वो पाक है तो फातिहा दे सकती है, अगर नहीं नापाक है तो खुद वो कुरान पढ़ के फातिहा नहीं दे सकती। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हज़रत जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नियाज ज़रूर ज़रूर कराएं, इसलिए कि वो आले रसूल हैं और उनका नियाज कराना ये दुरुस्त भी है। और वैसे तो ये मुस्तहब अमल है, अगर कोई ना भी कराए तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन करा ले तो बेहतर है, क्योंकि आले रसूल से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। अब आइए उनकी ज़िंदगी मुबारका की तरफ हम चलते कि आपकी ज़िंदगी मुबारका किस तरह थी। हज़रत जाफ़र सादिक की सीरत मुबारका क्या थी, ये आप समाप्त करें। सामईन, शहीद करबला, राकिबे दोसे मुस्तफ़ा, इमाम अरसे मकाम, इमाम हुमाम, सहाबी इब्ने सहाबी,
हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम के पर पोते अजीम ताबई बुजुर्ग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बशहादत 17 रबीउल अव्वल 80 या 83 हिजरी पीर शरीफ के दिन मदीना पाक में हुई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुनियत अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल, जबकि लक़ब आपका सादिक, फाजिल और ताहिर है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सच बोलने की वजह से सादिक के लक़ब से जाना जाता है। यानी आप इस्म बा मुसम्मा थे, जैसा लक़ब था वैसा ही आपका मुबारक अमल भी था। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा मोहतरमा का नाम मुबारक हज़रत बीबी उम्मे फरवाह बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हुम है। यानी आपकी वालिदा का नाम उम्मे फरवाह, उनके वालिद का नाम कासिम, उनके वालिद का नाम मोहम्मद, उनके वालिद का नाम अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हुम है। जबकि आपके वालिदे मोहतरम का नाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम है। यानी आपके वालिद का नाम मोहम्मद बाकिर है, फिर उनके वालिद का नाम अली यानी ज़ैनुल आबिदीन, फिर उनके वालिद का नाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम। यानी इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह वालिदा की तरफ से सिद्दीकी और वालिदे मोहतरम की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये ताबई बुजुर्ग हैं। आपने दो जलीलुल कद्र सहाबाई किराम हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत सहल बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़ियारत की। आपसे आपके शहजादे हज़रत इमाम मूसा काजिम, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक हज़रत सुफियान सौरी और हज़रत सुफियान बिन ओयन्ना रहमतुल्लाहि अलैहिम, इन जैसे बड़े बड़े बुजुर्ग ने फैज़ पाया। इनकी ज़िंदगी मुबारका के लिए मैं कुछ इनके वाक़यात आप लोग के सामने सुनाता हूँ कि एक बार का जिक्र है कि एक शख्स का बयान है कि हम ताबई बुजुर्ग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ हज करने जा रहे थे। रास्ते में हमने एक जगह खजूर के सूखे हुए दरख्तों के पास ठहर कर इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आहिस्ता से कुछ पढ़ा जो हम समझ ना सके। यानी हम एक जगह ठहरे, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आहिस्ता से कुछ पढ़ा जो मैं ना समझ सका। फिर आपने उन सूखे दरख्तों से फरमाया, अल्लाह पाक ने तुम में जो हमारे लिए रिस्क पैदा फरमाया है उसमें से हमें भी खिलाओ। उसी वक्त मैंने देखा कि खजूरों के गुच्छे आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ झुक रहे थे। आपने मुझसे फरमाया, करीब आओ और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। मैंने ऐसी मज़ेदार खजूरें इससे पहले कभी नहीं खाई थी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह कैसे मुस्तज़ाबुदावात थे। यानी आपकी दुआ इस तरह कबूल होती थी कि एक और कारिमाते इमाम जाफ़र सादिक है कि एक आदमी ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से दुआ के लिए अर्ज़ किया कि अल्लाह पाक मुझे इतना माल दे कि मैं बहुत से हज करूं, और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दुआ की, ऐ अल्लाह पाक इसे बाकसरत माल अता फरमा ताकि अपनी ज़िंदगी में 50 हज करे। लिहाजा उसे इतना माल मिला कि उसने पूरे 50 हज किए। जब 51 मरतबा हज के लिए मकाम ज़ुहफ़ा पहुंचा और गुस्ल के लिए नहर वगैरह में गया तो पानी की तेज मौजें उसे बहा कर ले गई और वो उसी में डूबकर फौत हो गया। आपका तीसरा वाक़या ये है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह मक्का पाक में एक दिन कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत अपनी गाय के मरने पर रो रही थी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, क्या तुम चाहती हो कि अल्लाह पाक तुम्हारी गाय जिंदा फरमा दे?
عورت نے کہا کہ آپ ہم سے اس طرح مذاق کرتے ہیں، حالانکہ میں پہلے سے ہی مصیبت میں ہوں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا فرمائی اور اس گائے کے سر اور پاؤں کو پکڑ کر ہلایا، وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک بار ہوا ہی کہ ایک شخص نے مکہ پاک میں ایک چادر خریدی اور ارادہ کیا کہ یہ چادر ہرگز کسی کو نہیں دوں گا، بلکہ اپنے انتقال کے بعد تبرکاً اسی کا دفن بناؤں گا۔ اس کا کہنا ہے جب میں میدان عرفات شریف سے مزدلفہ آیا تو وہ چادر مجھ سے گم ہو گئی۔ اب مجھے بہت دکھ ہوا جب میں صبح مزدلفہ سے مینا کے طرف آیا تو مسجد الکیف شریف میں بیٹھ گیا۔ اچانک ایک آدمی جو تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس سے آیا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا آپ کو امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ بلا رہے ہیں۔ میں جلدی سے آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ آپ نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری چادر مل جائے جو تمہاری موت کے بعد تمہیں کفن کے کام دے؟ میں نے عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ، وہ تو کافی دنوں سے گم ہو چکی ہے، مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے غلام کو آواز دی، وہ چادر لے آیا۔ میں نے دیکھا وہی چادر تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اسے لے لو اور اللہ کریم کا شکر ادا کرو۔ شواہد النبوت میں ہے کہ تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص 10,000 دینار لے کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا۔ ناظرین، یہ جان لیجئے کہ دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ تو 10,000 دینار لے کر وہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے اس پیسے سے کوئی مکان وغیرہ خرید لیجئے گا تاکہ میں حج سے واپسی پر اپنی اولاد کو لے کر وہاں رہنا شروع کر دوں۔ پھر حج سے واپسی پر وہ شخص آیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے، جس کی پہلی حد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، دوسری حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر، تیسری حد نواشہ رسول امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور چوتھی حد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ لو میں نے اسے تحریر بھی کر دیا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور خط لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی وہ شخص بیمار پڑ گیا۔ اس نے وصیت کی کہ اس خط کو میرے انتقال کے بعد میری قبر میں رکھ دینا۔ گھر والوں نے دفن کرتے وقت اس خط کو قبر میں رکھ دیا۔ دوسرے دن دیکھا تو وہی خط قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے یہ لکھا تھا کہ امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، یعنی اسے جنت میں مکان عالی شان مل گیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف فرما تھے کہ مکھیاں بار بار خلیفہ کے منہ پر بیٹھتی۔ خلیفہ نے تنگ آ کر عرض کی کہ اے ابو عبداللہ، یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت تھی، اللہ پاک نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو آپ نے خلیفہ کو چوٹ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا تاکہ ظالموں اور مغروروں کو ذلیل کرے۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ عالی نسب ہونے کے باوجود عاجزی کے پیکر تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عظیم شاگرد، بہت بڑے عالم اور صوفی بزرگ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ سے عرض کی اہل بیت میں سے ہونے کی حیثیت سے کوئی نصیحت فرمائیے، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش رہیں۔ دوبارہ عرض کی
अहले बैत से होने के एतबार से अल्लाह पाक ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो फजीलत बख्शी है, इस लिहाज से नसीहत करना आपके लिए जरूरी है। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मैं तो खुद खौफजदा हूँ कि कहीं क़यामत के दिन मेरे ज़द्दे आला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे हाथ पकड़कर ये ना पूछ ले कि तूने खुद मेरी पैरवी का हक क्यों नहीं अदा किया, क्योंकि नजात का ताल्लुक नसब से नहीं आमाले सालिहा से होता है। ये सुनकर हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह रो पड़े कि वो हस्ती जिनके ज़द्दे अमजद अल्लाह पाक के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं, जब इनके खौफ खुदा का ये आलम है तो हम किस गिनती में आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन सब पर रहमत हो और उनके सदके तुफैल हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। सामईन, ये कुछ वाक़यात आपकी ज़िंदगी मुबारका के तहत मैंने आप लोगों के सामने रखी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक तबीयत में खुश अखलाकी थी, मुबारक होठों पर मुस्कुराहट सजी रहती, मगर जब कभी ज़िक्र मुस्तफ़ा होता, यानी ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की हैबत व ताज़ीम के सबब रंग जर्द हो जाता। कभी भी बेवजू हदीस पाक बयान नहीं फरमाते, नमाज व तिलावत में मशगूल रहते या खामोश रहते, आपकी गुफ्तगू कुजूल गोई से पाक होती। नाज़रीन, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़ाहिरी और बातिनी उलूम के जामे थे। आप रियाजत और इबादत के मुजाहदे में मशहूर थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का बयान है, मैं एक ज़माने तक आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत मुबारका में आता रहा। मैंने हमेशा आपको 3 इबादतों में से किसी एक में मसरूफ़ पाया, या तो आप नमाज पढ़ते हुए मिलते, या तिलावत कुरान में मशगूल होते, या फिर रोजादार होते। सामईन, आपने सुना कि अजीम आशिक रसूल हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे हैं कि मैंने हमेशा इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह को इबादत में देखा। जरा हम भी अपने बारे में गौर करें कि हमारा कितना वक्त अल्लाह पाक और उसके प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में गुजरता है। हमारी नमाजों की क्या पोजीशन है? क्या हम भी रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत करते हैं? इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़र्ज के साथ साथ खूब नफल रोज़े भी रखते, और हम से सिर्फ फ़र्ज रोज़े भी नहीं रखे जाते। काश हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना नसीब हो जाए। अल्लाह पाक तौफीक दे तो फ़राइज के साथ साथ नवाफिल की भी कसरत कीजिए। रोज़ाना कम अज़ कम 1 पारे की तिलावत की आदत हो जाए तो क्या बात है। बेशक खीर पूड़ी और कुंडे की नियाज ज़रूर कीजिए, लेकिन खीर पूड़ियाँ पकाकर खाना और खिला देना, ये ही इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत का दम भरना नहीं। सच्ची मोहब्बत तो ये है कि हम उनके नक्शे कदम पर चले और उनकी तरह नेकियों में भी रग़बत रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रजब माह इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जारी है, जिससे हो सके उसे नफल रोज़ों की भी खूब कसरत करें। सामईन, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हालात मुबारका के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, वो सुन्नत पर अमल करने वाला है। ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातिनी हालत मुबारक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, वो सूफ़ी है। और बातिनी ज़िंदगी से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाकीज़ा अखलाक और आखिरत को इख्तियार करना है। लिहाजा जो शख्स आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के अखलाके करीमा से अपने आप को जीनत दें, और जिस चीज़ को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने
इख्तियार फरमाया उसे इख्तियार करे, जिस चीज में रगबत रखी उसमें रगबत रखे, जिस चीजों से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने आप को बचाया है उनसे बचता रहे, जिन कामों की तरकीब दिलाई उन पर अमल करे। बेशक वो गंदगी से पाको साफ होकर गैर से नजात पा गया। और जो शख्स आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रास्ते से हटकर माअज़ल्लाह अपने नफ्स की पैरवी करने और अपने पेट का और शर्मगाह की ख्वाहिशात को पूरा करने में मशगूल रहा, तो ऐसा शख्स सूफी बनने से दूर बेवकूफ़ी में कोशिश करने वाला और आने वाला खतरनाक हालात से गाफिल है। एक शायर ने क्या खूब ही कहा कि सिद्दीक़ सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम का, सिद्दीक़ सादिक का तसद्दुक सादिक इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काजिम और रज़ा के वासिते। शामीन, ये थी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी मुबारका। कुछ हालात मैंने आपके सामने रखे हैं, सिर्फ कुंडे की नियाज में ही गौर ना करें, उनकी ज़िंदगी की तरफ भी हमें गौर करना चाहिए। जो बात मैंने पहले की, इन सब फजूल बातों से भी हमें बचना चाहिए। याद रखिए कि नेक अमाल ही हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया है, वरना ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देना ये सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।